پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک اور افضل ترین نام میں آج شب پھر آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں خداوند کا یہ چھوٹا سا خادم آداب بجا لاتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے میں خداوند کا شکر کرتے ہوئے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آن لائن ہو کر میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو سیکھتے ہیں۔ آپ جو ہمارے ساتھ فیس بک کے کئی پیجز، یوٹیوب، واٹس ایپ میں خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، ہماری آپ کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ آپ مسیح کے عرفان میں اور اس کی معرفت میں اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی follow.jesus پر خوبصورت پرستش کی گئی، دعائیں کی گئی ہیں، میٹنگ پریزائڈ کی جا رہی ہے۔ خدا کے لوگوں میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا ہے کہ خداوند آپ پر بھی اپنی برکات کا بھی کثرت سے برساتا رہے۔ آج ہم زبور کی کتاب کے مطالعے کو کنٹینیو کریں گے۔ زبور 80 پر ہم ہیں اور اس 80 زبور میں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ آصف، جس کو خدا نے انسانی مصنف کے طور پر لیکن روح القدس کی تحریک سے اس زبور کو لکھوایا آصف کے ذریعہ سے، جب وہ اس زبور کو لکھتا ہے تو بنی اسرائیل کے بیہاف پر ان کی طرف سے خدا کے حضور، یہوہ خدا کے حضور ملتجی ہے، التجا کرتا ہے کہ اے یہوہ خدا، یہوہ سباؤت، ایل سباؤت، تو جو لشکروں کا خدا ہے، ہمیں پھر سے بحال کر۔ یہ ٹائٹل ہی، یہ عنوان ہی، یہ مضمون ہی کتنا خوبصورت ہے۔ کاش کہ میں اور آپ بھی دل سے خدا کے حضور یہ دعا کرنے والے ہوں کہ اے خدا، مجھے اس مقام پر بحال کیجئے جس مقام پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہوں۔ میری تو یہ التجا ہے، آپ کی بھی ہے، تو پھر ضرور دل میں خداوند سے کہیں، خداوند مجھے اس مقام پر بحال کیجئے جس مقام پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہوں۔ زبور 80 حسب معمول، جیسے میں پہلے بھی کہتا چلا آ رہا ہوں، آصف جو داؤد اور سلیمان کے وقت میں ایک پرستار اور موسیقار بھی تھا، میوزیشن، اور پھر آصف وہ شخص جس کو ہم نے تواریخ کی کتب میں بادشاہوں کے حضور نبوت کرتے ہوئے بھی پایا ہے۔ وہ اس زبور کو بنی اسرائیل کے بیہاف پر لکھ رہا ہے، اور شونیم ایدوت کے سر پر اس کا مطلب یہ ہے کہ شونیم اصل میں ایک 6 تار والا ایک آلہ موسیقی تھا جس کو اس وقت بجایا کرتے تھے۔ شاید آج ہمارے دیکھنے میں اس طرح کا یہ آلہ نہ آتا ہو۔
और शोनीम ईदूत की सुर पर, यानी एक ऐसी टोन में जो शायद सिर्फ उस आला पर ही बजा करती थी, उसने ये जबूर लिखा। मेरे पास और आपके पास ये जबूर नसर की सूरत में है, लेकिन जब आसफ ने लिखा तो वो इब्रानी शायरी यानी पोइट्री की सूरत में है, और वो खुदा के हुजूर ये इल्तिजा करता है कि हमें बहाल कीजिए, इसलिए कि हम आपके लोग हैं, कौम बनी इसराइल। और वो कौम बनी इसराइल को गोया एक गल्ला के तौर पर, रेवड़ के तौर पर, गल्ला के तौर पर पेश करता है, और खुदा को गोया चौपान या चरवाहा के तौर पर भी। जबूर 23 में दाऊद अपने आप को भेड़ के तौर पर तस्वर करता है और यहोवा को चौपान के तौर पर। यहां कौम बनी इसराइल को भेड़ों यानी गल्ला के तौर पर पेश किया जाता है और यहोवा को चरवाहा के तौर पर। जरा 79 की 13 आयत अगर आप देखें तो यहां लिखा है, तब हम जो तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़ें हैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। साफ जाहिर है कि अगर भेड़ें हैं तो कोई चरवाहा भी होगा, और बात हो रही है हम तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़ें हैं, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करेंगे, और नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त हम तेरी सताइश करेंगे। और इस जबूर के शुरू में ही हम देखते हैं, ए इसराइल के चौपान। बाय द वे, मैं इन आयात पर कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ पस मंजर के तौर पर बता रहा हूं। वो कह रहे हैं, ए इसराइल के चौपान। चौपान चौपान नहीं होता, चरवाहा चरवाहा नहीं अगर भेड़े ना हो तो। और बनी इसराइल को भेड़े और गला के तौर पर पेश किया गया। और आगे लिखा है, तू जो गला की मानिंद यूसुफ को ले चलता है, कान लगा। तो अब आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे कि इस जबूर में आसिफ कौम बनी इसराइल को खुदा के लोग, खुदा का गला, रेवड़ कह के मुखातिब होता है। हम तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। और यहोवा खुदा को चौपान के तौर पर कहते हुए मुखातिब होता है। याद कीजिए कि मैं बहुत कुछ इस जबूर के बारे में कह सकता हूं, लेकिन यह बनी इसराइल की बहाली की इल्तिजा और दुआ है कि हमें बहाल कीजिए। मैं आपके साथ आज आयत नंबर 4, 5, 6 और 7 इन 4 आयात पर बात करूंगा, और इस कलील से वक्त में इन आयात पर मैं और आप बाहम मिलकर सीखेंगे। लेकिन याद कीजिए कि यह अहद अतीक की बात है, जब यहोवा खुदा चौपान की हैसियत से अपना करदार अदा करता है और खुदा के लोगों ने उसको चरवाहा के तौर पर पुकारा, और खुदा के लोगों ने अपने आप को गला या भेड़ों के तौर पर पेश किया है। अगर हम अहद जदीद में आए तो जो चरवाहा है, सरदार गलाबान खुदावंद यीशु मसीह है। शायद आपने पहले भी मुझसे सुना हो कि जबूर 23 एक भेड़ की आवाज है, लेकिन यूहन्ना 10 एक चौपान की आवाज है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अब यहां
जब खुदाबंद यीशु मसीह सरदार गल्लाबान है, तो उसके बाद जो कलीसाई रहनुमा है वो उसके अंडर चरवाहे हैं, गोया पासबान, कलीसाओं के रहनुमा और लीडर उस सरदार गल्लाबान के तहत हेड वो है, बाकी चरवाहे हैं, लेकिन उस बड़े चरवाहे के तहत, काश के तहत होते हुए हम सरदार गल्लाबान से इंस्ट्रक्शंस और हदायत ले, और जैसे वो चाहता है हम अपनी भेड़ों की वैसे ही देखभाल करने वाले और ख्याल रखने वाले हों। खुदा करे कि ऐसा हो। लेकिन जब हम इस ज़बूर को देखते हैं, बिलखसूस चूंकि यह शायरी है, और आयत 4 में ए खुदाबंद लश्करों के खुदा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, रब्बुल अफवाज, यहोवा सबाऊथ, जो इब्रानी में इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो कब तक अपने लोगों की दुआ से नाराज रहेगा? यहां यहोवा सबाऊथ यानी लश्करों के खुदा की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। और फिर अगर आप 7 आयत देखें तो वहां भी ए लश्करों के खुदा, और फिर अगर आप आयत 19 देखें तो वहां भी ए लश्करों के खुदा की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। और एक और बात, यह दुआ तो की जा रही है, लेकिन याद कीजिए आयत 3 में कहा गया है अपना चेहरा चमका, और फिर जब हम आयत 7 में देखते हैं तो वहां भी अपना चेहरा चमका हम पर, और फिर आयत 19 में देखते हैं तो वहां भी यही कहा जाता है अपना चेहरा चमका। आयत 14 में भी ए लश्करों के खुदा। शायरी में कई ऐसे अल्फाज होते हैं जो बारहा बार इस्तेमाल होते हैं। एक क्लू, एक आइडिया, एक ख्याल इन बातों पर गौर करते हुए हमें नजर आता है कि आसफ बनी इसराइल के बिहाफ पर रब्बुल अफवाज लश्करों के खुदा से मुखातिब होता है, कहता है कि हमारी दुआओं के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो हमसे नाराज क्यों है? अपना मुंह हमसे ना फेर, हमें जवाब दे, क्योंकि हम तेरे लोग हैं। हमें बहाल कर, अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा गर फरमा। और ये लगता है कि एरोनिक ब्लेसिंग्स, यानी वो हारून की जो ब्लेसिंग्स है कि खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप पर जलवागर फरमाए, यही बात वो कह रहा था कि ए खुदा अब तू अपने चेहरे का नूर जलवागर फरमा। लेकिन आयत 4 ए खुदावंद लश्करों के खुदा, मैं कह चुका हूं यहोवा सबाऊथ रब्बुल अफवाज, आसमानी लश्कर उसके हैं, मलाइक के, करोबियों के, सराफीन के। तू कब तक अपने लोगों की दुआ से नाराज रहेगा? यहां पर एक इल्तिजा की जा रही है। इससे पेशतर खुदा की तारीफ के लिए बात हो रही है, और आयत 3 में दुआ है, और आयत 4 में
यूं लगता है जैसे खुदा से एक गिला भी किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि तू हमसे नाराज क्यों है। और देखिए, ये दुआ, कभी आपने ऐसी दुआ की कि खुदावंद तू मुझसे नाराज क्यों है? मैं ये बताना चाहता हूं कि यह दुआ बड़े बोझ के साथ की जा रही थी। कभी कभी मैं जब दुआ करता हूं, अपनी शख्सी दुआ, तो मैं खुदा से यह कहता हूं, ऐ खुदा मैं थक गया हूं, मेरी मदद फरमाइए। और इंतहाई पस्ती के आलम में खुदा के लोग भी जब दुआ करते हैं, खुदा सुनता जरूर है। लेकिन जो बात यहां नजर आ रही है वो ये कि उनको महसूस होता था कि जैसे खुदा कटी हो गया, नाराज है। अक्सर औकात हम ये सोचते तो जरूर हैं, पता नहीं मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता, खुदा अपने चेहरे का नूर मुझ पर जलवा गर क्यों नहीं करता, खुदावंद कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया हो, अगर हो गया हो तो मुझे माफ कर। कभी आपने ऐसे दुआ की? खुदा सब कुछ जानता है। मैं समझता हूं कि इस्राएल के बहाली के पीछे जो रुकावट थी वो उनका गुनाह था। बारहा बार गैर माबूदों की पैरवी करना और इस अजीम चरवाहे को छोड़ देना और दूसरी सिमत पर रवा हो जाना खुदा को पसंद नहीं था। खुदा यह चाहता था कि ये जो प्रॉब्लम है इनकी जिंदगी में, इस प्रॉब्लम को पहले दूर करें, तब बात बनेगी। अगर उंगली पर जख्म हो और हम उस जख्म के ऊपर पट्टियां करते रहें, लेकिन जो अंदर जख्म है वो क्यों है, उसका रीजन क्या है, क्यों ठीक नहीं हो रहा, शायद हम इसकी बाबत इतना सोचते नहीं, बस कहते हैं जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है नो, आपको मेडिकल टेस्ट्स देने होंगे ताकि असल वजह पता चले कि आपका जख्म क्यों ठीक नहीं होता। खुदा के लोगों, जब हम उस डॉक्टरों के डॉक्टर, माहिर तबीब आजम, जो हमारा रूहानी तौर पर फिजिशियन और सर्जन और तबीब और डॉक्टर है, जब हम उसके हुजूर आते हैं तो वो कहता है तुम में गुनाह का नासूर है, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी बहाली के लिए जरूर है कि तुम मानो कि यह है और उस गुनाह के नासूर से अपनी जान छुड़ाओ, फिर देखो कि मैं तुम्हारी सुनता हूं कि नहीं। यह एक अहम सच्चाई है। अगरचे दुआ के जवाब के मिलने में देर होने की कई और भी वजूहात हैं, सिर्फ यही एक नहीं है, लेकिन इस ज़बूर के मुताबिक बनी इस्राइल की तारीख इस बात को बताती है कि उन्होंने अपने कामों से खुदा को नाराज किया था, जिस सबब से उनकी सुनी नहीं जा रही थी। आयत नंबर 5 में वो क्या कहता है खुदा के लोगों की तरफ से या उनके बिहाफ पर? तूने उनको, किनको? खुदा के लोगों को, अहद अतीक में बनी इस्राइल को। तूने उनको आंसुओं की
रोटी खिलाई, तूने उनको आंसुओं की रोटी खिलाई और पीने को कसरत से आंसू ही दिए। खाना भी और पीना ही, खाना भी और पीना भी आंसू ही थे। इसका गोया मतलब यह नहीं है कि आंसुओं के साथ भरा हुआ प्याला उनको दिया जाता था कि तुम पियो, या खाने के वक्त भी आंसुओं से भरा हुआ प्याला उनको दिया जाता था। नो, ये एक टर्म, ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। जैसे हम कहते हैं कि मैं इतना दुखी हो गया, उसका हाल देखकर इतना परेशान हो गया कि जैसे मेरे आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। कदी किसे दिया अखां चों नदियां वगियां। लेकिन हम ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, इस्तारा इस्तेमाल करते हैं, मुहावराती जबान है, जिसका मतलब यह है हम बहुत 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 रोने लगे। हमारा ओढ़ना बछूना रोना ही था। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब मैं जबूर 42 को देखता हूं, 42, और इसकी 3 आयत, तो यहां पर बनी कोरा ये कह रहा है, मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहां है। मेरे आंसू भी और दूसरे लोग भी मुझे याद दिलाते हैं, दुश्मनाने कोरा और इस्राइल याद दिलाते हैं कि तेरा खुदा कहां है। और एक और जबूर में भी लिखा है कि मैं आंसुओं के साथ अपने बिस्तर को तर पाता हूं। और इसका मतलब रोना और रोना और खुदा के हुजूर कराना है। वो बड़े कर्ब की हालत है, दुख के आलम में, जब इंसान टूट कर बिखर जाता है, तब ये हालत होती है कि हम आंसुओं के साथ रब्बुल अफवाज के हुजूर दुआ करते हैं। और खुदा के लोगों, खुदा की मर्जी के मुताबिक जो आंसू बहते हैं, खुदा उनको अपने मशकीजे में, बोतल में बंद कर लेता है और उन आंसुओं की वो कदर करता है जो उसकी मर्जी के मुताबिक बहें, उसकी रजा के लिए, मुआफी के लिए, बहाली के लिए। तो यहां पर यह बात हो रही है कि तूने उनको आंसुओं की रोटी खिलाई और पीने को कसरत से आंसू दिए। और आयत नंबर 6, तू हमको हमारे पड़ोसियों के लिए झगड़े का बायस बनाता है और हमारे दुश्मन आपस में हंसते हैं। अल्जाम किस पर है? खुदा पर। तू हमें अपने पड़ोसियों, हमारे पड़ोसियों के लिए झगड़े का बायस सबब बनाता है कि हम उनसे झगड़ते हैं। और जो हमारे दुश्मन हैं वो हम पर आपस में हंसते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं, ठट्ठे मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यह बात आसफ यहां पर कर रहा है। यूं लगता है कि यह जबूर गोया एक मरसिया है, एक नौहा है, लेमेंटेशन, जो इस्राएल की तरफ से था। खुदा
के हुजूर कि खुदा नाराज है, इस सबब से गोया वो उसके हुजूर नोहा गुना थे। और ये इकरार हो रहा है कि हम रो रहे हैं, ए खुदा यहोवा सबाउत लश्करों के खुदा, हम तेरे लोग हैं। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं वो तेरे लोगों को ठट्ठे मारते हैं कि तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज है, जिस सबब से तुम्हें कोई जवाब नहीं देता। एक बात तो मैं कह चुका हूं कि ये एक हकीकत है कि जवाब ना मिलने के पीछे बहुत सारी वजूहात में से इस जबूर के मुताबिक हमारा अपना कोई पाप, हमारा अपना कोई गुनाह होता है। इस्राइल का था, उसका इकरार करके मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए बहाली हुई भी नहीं है। दूसरी तरफ एक और बात, खुदा के लोग दुख में हैं और जो खुदा के लोग नहीं वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई तमाशा देख रहे हो, ठट्ठा मारते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा खुदा कहां है, वो तुम से नाराज है। बाज़ौकात जो आज भी खुदा के बंदे और खुदा की बंदियां हैं, उनका शख्सी तौर पर यह तजुर्बा होगा कि खुदा का होने के सबब से जब हम कर्ब और दुख में होते हैं तो दुनिया वाले लोग हमारे मुंह पर शायद नहीं, लेकिन एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हा 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 कह के हमारा तमस्कर उड़ाते हैं। वेख्या जे बड़ा अपने आप ਨੂੰ खुदा ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖੀ ਜੇ बड़ी भगतन, हाल ते वेखो ਉਹਦਾ। दुनिया वाले ऐसे ही करते हैं, लेकिन परेशान ना होइए, बुजुर्ग अयूब के साथ भी ऐसा हुआ। हर जमाने में खुदा के लोगों के साथ ऐसा होता रहा। क्या मालिके दो जहां खुदावन यसु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके ठट्ठे मारे गए? हम तो उसके कदमों की खाक भी नहीं है। हमें अपने आप पर जरा सोचना और गौर करना है। आयत नंबर 7, फिर से वही बात, ए लश्करों के खुदा हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। ए लश्करों के खुदा हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि यह आयत 3 ही की रेपिटेशन यानी दोहराई है जो यहां हम देखते हैं। अपना चेहरा चमका, मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि यह हारून के जो कलमाते बरकत दिए जाने थे और दिए जाते थे, बार बार उनको रिपीट किया जाता था, वहां से ही यह टर्म ली गई कि खुदा अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवागर फरमाए। और यहां वो जिसके चेहरे का नूर चमकने की जरूरत है हम पर, हम में, वो इस्राएल के मसीहा, मेरे और आपके निजात दहंदा खुदाबंद यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं।
जिसके चेहरे के नूर के हम पर चमकने के लिए हम इल्तिजा करते हैं और मुल्तजी हैं। इंतहाई दुख के आलम में वो ये दुआ कर रहे थे, कर्ब के आलम में, और वो सोचते थे कि इसकी वजह यह है कि खुदा ने हमें रद्द कर दिया। लेकिन शायद वो उस रीजन पर नहीं जाते थे कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन जब हम अहदे जदीद में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस रद्द किए जाने के पीछे रीजन क्या था। मैं आपको मुकद्दस लूका की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस की तरफ लिए चलता हूं। 19 बाब और उसकी 41, 42, 43 और 44। देखिए खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं इस्राएलियों से और उनकी विरासत से, मीरास से क्या फरमाते हैं। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। और आप जानते हैं कि मसीह खुदावंद की यह नबुव्वती बात 70 ईस्वी में पूरी हुई, और इससे पहले भी बार बार इस बात को रिपीट किया जाता रहा कि गैर कौमों के हवाला वो किए जाते थे। और नीरो टाइटस जर्नैल ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और इन लोगों को असीर करके बाबल ले जाया गया। इसलिए हम एक जबूर भी पढ़ते हैं, बाबल दिया नहराते जा बैठे असीजा। और फिर लूका 23 बाब की बस एक आयत मैं तलावत करूंगा और उसके बाद मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा, दुआ करूंगा। 23 बाब की 28 आयत, यहां किताब मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वो वक्त नजदीक था जब मसीह की यरूशलेम से मुताल्लिक की जाने वाली नबूवत की तकमील होने को थी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब कभी हम कर्ब और मौत के साया की वादी से खुदा के लोग होते हुए गुजरे, ये खुदा के लोगों की बात है, तो बजाय इसके कि खुदा को गिला करने के, क्यों ना हम अपने आप पर गौर करें, अपने आप पर निगाह करें, देखें कि मुझ में क्या कमी है, कौन सा गुनाह मेरी आवाज को आलमे बाला तक पहुंचने नहीं देता, जिस सबब से मेरी दुआ का जवाब नहीं मिलता। यह एक अहम तरीन सबक है मेरे लिए और आपके लिए। और इन आयात के वसीला से मेरे अजीज भाई और बहन, अगर हम बहाली चाहते हैं तो खुदा की तरफ रजू लाएं, वो हमारे भले दिन फेर लाएगा। आइए हम दुआ करें।
रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा एल सबाउत, शुक्रगुजारी करता हूं आपके कलाम के गहरे भेदों और मकाशफात के लिए। खुदावन, हम इकरार करते हैं हम वो गुनाहगार हैं जो आपके फजल के वसीला से बचे। खुदावन, जो काम हम नहीं करना चाहते हमसे हो जाता है, हमें मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए और हमें बहाल कीजिए। सदाकत की राहों पर ले चले और हमारे जीवन से आपके नाम को जलाल और इज्जत मिलता रहे। ऐ खुदावन, मेरे बहुत से भाई और बहनें ऐसे हैं जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स लिख भी रहे हैं और उनके दिलों और उनके जहनों में भी है। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन खुदावन आपकी निगाह आपके लोगों पर है। आपका खादम होते हुए दरखास्त करता हूं, अपने लोगों पर निगाह करम कीजिए। और खुदाबंद यीशु, अपने लोगों को मुआफ कीजिए, बहाल कीजिए, सरफराज कीजिए, शिफा बख्शिए और बंद दरवाजों को खोलिए और पीतल और लोहे के बेंडे यीशु के नाम से टूट जाए और अबलीस शर्मिंदा हो और शिकस्त खोरदा हो। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे अगर खुदावन की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।